Good evening everyone and a warm welcome to all of you for the second year annual function of Swanak Foundation. Thank you each and every one of you being here with us today. We are very pleased to be able to welcome these two youth that have been with us for a long time now, as well as those who are now new to the organization. Today marks our second annual Swanak Foundation Day and we are proud to be able to host it today here at the wonderful place with all of you. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you who have generally helped us make this event come together to become a success in such a pandemic situation. Welcome Honorable Chandrakant Dada Patil. He is a politician and the Maharashtra State President of Bharatiya Janata Party since 2019. We are honoured to have Ms. Shreya Bhartiya on the stage. She is the founder and the managing trustee of Swanak Foundation. We are honoured to have the Swanak supporters on our stage today, Mr. Manoj Panchal, Mr. Abhay Teli and Mr. Narayan Ingle. We are very grateful to have Honourable Mr. Chandrakant Dada Patil for accepting our invitation and marking his presence here. I now invite him to light the lamp before we proceed the event along with the guest on the stage. Yeah. Ya. Terus sendiri dulu. Oke. Ya, boleh sih. Ya. Apa ya? Boleh segi zon ya. Ya, dah. Entah tak? Sarika, Gagan, ya. Urja, ya. Oh. Ini salah dulu. Ayo. Ya. Kalian apa ya? Now I request Mrs. Shreya Bhartiya to felicitate Honourable Mr. Chandrakant Dada Patil with a token of Swanak Foundation reminder and a dedicated book of Sant Jnaneshwar, who himself was a great saint with an orphan background. I request Honourable Mr. Chandrakant Dada Patil to felicitate the Swanak supporters, Mr. Manoj Panchal. Mr. Manoj Panchal is the founder of Zanit Ashram since 2015. He is a motivational speaker for last 10 years, worked as a branch development officer in HDFC Bank. He provides free medical aid for old age orphan people and he is the Darpan director. Mr. Abhay Teli.
He is a social worker from last 8 years. He has done MSW, MA, Human Right Diploma, Right to Information Diploma, pursuing LLB, Sociology Gold Medalist, and Karpal Foundation Director. Mr. Narayan Ingre. Thank you. He is a social worker from last 6 years, completed computer engineering, currently working in the team of Women and Child Development Minister, Maharashtra. Thank you. Today's gathering is possible because of the hardcore social work of Mrs. Shreya Bharti. She has proved the saying, we don't see things as they are, we see things as we are. She is the founder and managing trustee of Swarnath Foundation since 2019. She has completed her MA, MSW and pursuing PhD, currently working as a CSR head and psychological counselor in Vivekananda Institute of Management Studies, Research Business School. As she is the founder of Swarnath Foundation, which aims every orphan child gets a nurturing family to prevent an institutionalization of orphan children, working as a professional social worker from last 12 years and as a psychological counselor from last 8 years of profession. So I won't take your time more. I would request Ms. Shreya Bharti to speak about it. नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वनाथ फाउंडेशन की पहली नींव जिस दिन रची गई, उस दिन हमारे उस क्षण के साथ, उस क्षण में हमारे साथ रहने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे गाइड और इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए जो एक मजबूती चाहिए थी, जो एक भरभक्कम आधार जिसे कहते हैं, वो हमें चाहिए था, वो हमें माननीय श्री चंद्रकांत दादा पाटिल, जो अभी विद्यमान महाराष्ट्र राज्य के भाजपा के अध्यक्ष हैं और गत जो अपना काल था जहां पर उन्होंने तत्कालीन वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तथा उसके साथ साथ सहकार मंत्री और महसूल विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री दादा थे और उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका पूरे उस कार्यकाल में रही थी। तो ऐसे दादा आज हमारे साथ में है, तो मैं बहुत फक्र महसूस कर रही हूँ आज और बहुत आनंदित हूँ। उसके साथ साथ हमारे जो प्रशांत जी हरतालकर जी है, जो आज दिल्ली में स्थित है, कोरोना के लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने ये स्वनाथ फाउंडेशन और इसकी संकल्पना जो है हर बच्चे को परिवार मिलना चाहिए, इस संबंध में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया था और मुझे आदेश दिया था कि इस विषय को लेकर हमें देश भर में अभियान चलाना है। तो ऐसे हमारे प्रशांत हरतालकर जी, मैं उनको यहाँ से ही बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ और उनका धन्यवाद देती हूँ। तथा दादा को भी मैं आज इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका स्वागत, उनका अभिनंदन और उनको धन्यवाद देती हूँ। उसी के साथ साथ जो आपने बहुत से फेसबुक लाइव के माध्यम से आपने सुना होगा कि हमारा मनोज, हमारा अभय, हमारा नारायण, हमारी अमृता, हमारी सुलक्षणा, ऐसे कई नाम मैं लूंगी तो भी कम है। ऐसे हमारे स्वनाथ बच्चे जो संस्थाओं में अनाथ बन के रहे थे और उन्होंने अपना ऐसे स्थान समाज में कमाल का हासिल किया है कि उनके बारे में जितना कहे उतना कम है। लेकिन उनकी पॉजिटिविटी, उनको देखकर, उनकी बातों से उसकी गंभीरता, यानी अनाथ होम की गंभीरता क्या है, अनाथ बच्चों के संबंध में जो प्रॉब्लम्स है, इतने भयावह प्रॉब्लम्स है और डे टू डे लाइफ में वो संस्थाओं में रहकर फेस करते जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं, इसका गांभीर्य जो है, इसका सीरियसनेस जो है, वो इन बच्चों को देख के हमने समझा है और उसकी अहमियत समझी है कि यहाँ अपना देश जो कुटुंब वत्सल देश कहलाता है, जो परिवार आधारित हम फक्र से बताते हैं, हम अभिमान से सब लोगों को कहते हैं कि हमारा देश एक कुटुंब वत्सल देश है, ऐसे हमारे देश में आज के हमारी अनाथ होम के विषय में, अनाथ होम बच्चों के संबंध में क्या स्थिति है, तो बहुत भयावह स्थिति है। आपने 2-3 फेसबुक लाइव माध्यम से आप सभी ने जाना है, ये बहुत कठिन समस्याओं से ये सब बच्चे गुजर रहे हैं। आज स्वनाथ फाउंडेशन का ये स्थापना दिन है और इस स्थापना दिन के अवसर पर, ये शुभ अवसर पर मैं आज इन सभी बच्चों का भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ।
लेकिन हजारों संख्या में हमें देखने वाले सभी स्वनाथ बच्चों का भी मैं इस संदर्भ में, इस संबंध में आज सबका मैं स्वागत, अभिनंदन और उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। उसके साथ साथ आज यहाँ पे मेरे पति है जिन्होंने मुझे इस विषय के लिए मुझे मार्गदर्शन भी किया और वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं और पर्दे के पीछे है, अक्सर वो वैसे रहते हैं, लेकिन ये सभी विषय का कॉन्फिडेंस जो मुझे मिल पाया या मेरा कॉन्फिडेंस बरकरार होने का कारण मेरे पति है। उसके साथ साथ मेरी ऊर्जा है, मेरा आर्य है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बहनोई, मेरी भांजी, कितना नाम मैं लूं, सबका नाम लूं तो कम होगा। मेरा पूरा भारतीय परिवार जो दूर से अमरावती से हमें देख रहा है आज, और बहुत खुशी उनको सभी को हुए, उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट भी इसके लिए बताया था। तो वो सबका, उन सबका मैं आज स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देती हूँ। तथा गगन और सारिका, ड्रीमबर्थ प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है जिसके तहत डिजिटल माध्यम से ओआरएम का काम चलता है, डिजिटल माध्यम से लेके अलग अलग से इसके संबंध में जो डिजिटल प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, तो वो ट्विटर हो, वो सोशल मीडिया के संबंध में हो, ऐसे अलग अलग जो प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं, इसके लिए इन्होंने एक अच्छा सोल्यूशन लेकर वो आए हैं और उस संबंध में वो संघर्ष करके स्ट्रगलर है वो दोनों, और वो काम कर रहे हैं। तो वो स्वराज के साथ साथ पहले से ही जुड़े हैं, तो वो भी हमारे साथ में है। तो आज ये सब जो विषय है, वेबसाइट का जो डेवलपमेंट जो की है, बहुत बढ़िया तरीके से वो तैयार हुई है। आप थोड़ी देर में ये देख पाएंगे, लेकिन उनका भी मैं स्वागत, अभिनंदन और उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। और आप तमाम प्रेक्षक जो मुझे सुन रहे हैं बहुत दिनों से और ये विषय की जानकारी आप हासिल कर रहे हैं, मुझे उसके संबंध में बहुत मैसेजेस भी दे रहे हैं, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम के लिए। आज स्वनाथ का स्थापना दिन है। आज मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माननीय श्री पूजनीय गोलवलकर गुरुजी का आज स्मृति दिन है और स्वनाथ का आज स्थापना दिन है। तो ये बहुत बहुत कमाल की पहल मेरे लिए हुई है। तो हर समय जब स्थापना दिन मनाया जाएगा तो हम गोलवलकर गुरुजी जी को याद करेंगे जरूर। तो आज मैं इस मंच पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से हमने एक काल सापेक्ष और एक अभिनव कदम रखा है। वैसे हम देखेंगे तो भारतीय सामाजिक जीवन के इतिहास में सामाजिक संस्थाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है और 2 साल का स्वनाथ का सफर ये तो वैसे तो अत्यल्प है, लेकिन मुझे लगता है कि दादा जैसे लोगों ने जिन्होंने इस विषय को सराहा है, इस विषय की संवेदनशीलता को जाना है और इस विषय से हम 2 साल में भी बहुत लोगों तक पहुंच पाए हैं। और इसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था, जो 2019 की ये मैं बात करूंगी, 5 जून 2019, उस दिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने उनके मार्गदर्शन द्वारा, उनके करकमलों द्वारा हमारे कार्य का शुरुआत की एक मुहूर्त में रची थी। और वहां से जो शुरुआत हमारे सफर की हुई है, स्वनाथ फाउंडेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लेकिन हमारे संस्था का विजन ही ये है कि हमारे यहाँ के बच्चों का जो उनके राइट्स है, उनके हक है, उनके अधिकार जो है, ये अधिकारों का पालन पोषण होना चाहिए, ये अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, ये अधिकारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और सबसे पहले जिसको हम कहते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति हम बच्चों को मानते हैं, तो ये राष्ट्रीय संपत्ति का जतन, उनके हक का जतन वो ठीक तरह से होने चाहिए और इसके लिए हम सज्ज हैं। और इसीलिए ये विजन को लेकर हर बच्चे को परिवार, ये बात हम सभी जगह पर बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। इसकी अहमियत क्या है, इसका महत्व क्या है, तो ये जो स्वनाथ फाउंडेशन का हर बच्चे को परिवार ये मिशन जो है, ये मिशन ही यही कहता है कि हमारे यहाँ परिवार आधारित हमारा देश है। हमारे देश में 125 करोड़ की देश संख्या है, जनसंख्या है, और इसमें 2 करोड़ बच्चों से भी ज्यादा अनाथ बच्चों की संख्या है। बहुत पुराना रिपोर्ट, वैसे रिपोर्ट के यहाँ हमारे यहाँ बहुत मुश्किलात आती है कि हमारे यहाँ डेटा ठीक तरह से मिलता नहीं, तो अभी की मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन वर्ल्ड में हर रोज 10,000 से बच्चे जन्म लेके अनाथ हो रहे हैं और हमारे यहाँ का रिकॉर्ड पुराना है, लेकिन 160 बच्चे रोज जन्म लेकर अनाथ हो रहे हैं हमारे देश में। और हमारे यहाँ संस्थाओं की कितनी संख्या है, तो 7,466।
इसमें बच्चों की तादाद कितनी है, तो वैसे 2 लाख के दरमियान ही होगी, लेकिन इसमें अनाथों की संख्या के बारे में सोचेंगे तो बहुत कम हमें वहां पे दिखाई देते हैं ये बच्चे। तो ये क्या है, ये हम समझना चाह रहे हैं। स्वनाथ फाउंडेशन एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्वयंसेवी संस्था ऐसी है कि जो नोडल एजेंसी के रूप में एक रिसर्च बेस्ड काम हम करने वाले हैं। ये डेटा क्यों नहीं मिलता, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे, और ये बच्चों के संबंध में हम ठीक तरह से मालूमात कर इस विषय को एक सीरियस प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। और इसीलिए ये जो बच्चों का विषय है, इसके संबंध में हम फॉस्टर केयर सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। फॉस्टर केयर सर्विसेज यानी पोषण देखरेख, यानी मराठी में उसे कहते हैं कि सभी बच्चों को, सभी जो बच्चे हैं उनको प्रतिपालकत्व योजना, जिसे बाल संगोपन योजना, फैमिली असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत जाना गया कुछ समय के अवधि तक। लेकिन ये फॉस्टर केयर सर्विसेज, जैसे कृष्ण की हम बात करते हैं कि कृष्ण जो घर घर जा सकता है, हमारे संस्था का कृष्ण यदि यशोदानंद मिलते हैं तो वो घर घर में जा सकता है। उनका डेवलपमेंट के बारे में हम सोचते हैं तो 8 साल के बच्चे की डेवलपमेंट पूरी होती है ऐसे हम कहते हैं, लेकिन हमारे संस्थाओं में अनाथ बच्चे उसी समय वो संस्थाओं में पलते बढ़ते हैं। उनके लिए देखने के लिए कौन कौन लोग हैं, तो बहुत कम स्टाफ मेंबर्स वहां पे रहते हैं। वो एक जगह पर एक ही जिसको कहते हैं कि एक ही बार किसको किसको करेंगे, तो 100-150 लोग, 100-150 बच्चे उनको एक साथ में ट्रीटमेंट उनको देनी पड़ती है, या उनको उनके साथ उनकी केयरिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे तादाद में यदि बच्चे होंगे तो वो भी क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो प्रावधान में लिखा गया है, फॉस्टर केयर सर्विसेज को प्राधान्य दे, उसको प्रोत्साहन मिले, और हर परिवार में यदि कृष्ण यशोदा नंद के यहाँ जाता है, हमारे यहाँ ऐसे बहुत से कृष्ण और बहुत से यशोदा और नंद भी है। अभी कोरोना काल में जो जिनके माता पिताजी गुजर गए, ऐसे बच्चे पूरी तरह से अपने माँ पिताजी के प्रेम से वंचित हो गए हैं। सभी सरकार ने उसके संबंध में बहुत सी राशि देना चाहा है, बहुत से उन्होंने उसके निर्णय भी घोषित भी किए हैं। 5 लाख की संख्या, 5 लाख की आंकड़े में उनको राशि मिलने वाली है, ये सभी सुना है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर गौर करने की जरूरत है कि जहाँ पर बच्चों को परिवार मिलने के लिए क्यों हम प्रयास नहीं करते। पहले सबसे जरूरत ये बच्चों की है जिनको भावनिक जो उनकी पीड़ाएं हैं, इसको समझना, इसके लिए माँ का स्पर्श उनको मिलना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। और पिता की छाया मिलना, पिता का एक मजबूत आधार उनको मिलने की जरूरत है। तो ऐसे जो बिछड़े हुए, ऐसे जो माँ पिताजी अपने बच्चों से खो बैठे हैं, अपने बच्चों को खो बैठे हैं, और ऐसे बच्चे जो अपने माँ पिताजी को खो बैठे हैं, क्यों हम फॉस्टर केयर सर्विसेज के प्रावधान के अंतर्गत इन बच्चों को और इन माँ पिताजी को इकट्ठा नहीं ला सकते। मुझे लगता है यदि हम सब मिलकर, सब समाज इकट्ठा आकर हम यदि कोशिश करते हैं तो ये बात हमारे लिए कठिन जरूर नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। हमें इसको पॉसिबल करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल करने के लिए स्वनाथ फाउंडेशन इस विषय को लेकर फॉस्टर केयर सर्विसेज के लिए प्रोत्साहन और इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इसका जिक्र कर रहा है। और इसके लिए हम कटिबद्ध, हमें खुद को मानते हैं, और हम समाज को इस जो स्थापना दिन आज का है, इसके उपलक्ष्य में हम इसी वजह से अधिकाधिक लोगों तक ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वेबसाइट का हमने सोचा है। हम सोच रहे कि ये वेबसाइट के माध्यम से, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम ज्यादातर ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे। हम फॉस्टर केयर सर्विसेज का प्रावधान क्या है, क्या जरूरत है इन बच्चों की, क्यों वो संस्थाओं में जाएंगे, क्यों नहीं वो कुटुंब में जाएंगे, और यदि वो परिवारों में जाते हैं तो उनका कितना बड़ा, बहुत बड़ा विषय हम सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत कमाल क्या नागरिक ये हर एक जो चाइल्ड अपना है, वो कृष्ण जैसा जगत गुरु की हैसियत रखने वाला, काबिलियत वाला ये हमारा बच्चा है। तो ये अनाथ बच्चे ये परिवारों में जाए और परिवार आधारित सेवाओं को प्रोत्साहन मिले, यही हमारा कर्तव्य और यही हमारी जिम्मेदारी है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अभिमान मैं महसूस कर रही हूँ कि आज वेबसाइट के माध्यम से आप सब जान पाएंगे। इसमें बहुत सी बातों की हमने इन्फॉर्मेशन दी है, लगातार इस पर हम काम करते जाएंगे, और जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ये सभी लीगल एस्पेक्ट हो उसका, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो उसका, सोशल एस्पेक्ट हो, ये सभी संबंध में हम आपको जानकारी देते जाएंगे। इसके लिए आप सभी का जो मौलिक सहयोग मिलना है,
आपकी सहभागिता और आपके अमूल्य जो मार्गदर्शन और अमूल्य मत रहेंगे वो आप हमें जरूर भेजेंगे। मैं ज्यादा अभी समय नहीं लेती क्योंकि दादा को जाना है, उनके बहुत कार्यक्रम की व्यस्तता में उन्होंने हमें समय दिया है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। दादा, आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरे विषय को विराम देती हूँ। आगे जाके वेबसाइट के बारे में आप जान जाएंगे और दादाजी के हाथ से कर कमलों के द्वारा हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Shreya ma'am. I feel extremely honored to introduce our chief guest, Honorable Chandrakant Dada Patil, who is the politician and the Maharashtra State President of Bharatiya Janata Party since 2019. His social work has helped individual, families, group and communities to enhance their individual and collective well-being. He has helped Swarnath Foundation and has proved the quote, the way to get started is to quit talking and start doing. Without his help to Swarnath Foundation, we wouldn't have imagined its 2 years successful journey and its growth in virtual world for the benefit of orphan kids. Well, without taking too much of your time, I request Mr. Chandrakant Dada Patil to first launch the website and then honor us with your valuable words for Swarnath Foundation. इसको तो बनना है थोड़ा Request Mr. Rajan Malhotra to please explain the website. Good evening, everyone. Over here in the website, first of all, we try to showcase certain few things like what is Swarnath Foundation and what is its aim. So it says about that it created awareness for the promotion of the family-based services for children who are institutionalized and to prevent the institutionalization of the children. So the main motto of Swarnath Foundation it is that it's a nodal voluntary organization who is working for the children who are in need of care and protection. So this is the first and foremost goal of Swarnath Foundation. Then we have mentioned the profile like of Shreya Bharti, who is the managing trustee. So her qualification, her current responsibilities and her work in the social field. Then certain testimonials like which has been given by CWC chairman and other people. So that has been showcased over here. Then we have mentioned like some of the adopted parents from the Bollywood industry like who have already adopted kids, orphan kids like Sushmita Sen, Ravina Tandon, Mithun Chakravarti, Neelam and Sabir, Subhash Ghai and Mandira Bedi. Then there is an option of like donation now, so people can donate. So we have also like linked like the Facebook page, Twitter page and the address to visit them physically. Then going ahead, then in the about section like what is Swarnath actually, then why Swarnath, who we worship, successful Swarnath, rights of a child. Now this is a very good thing, like rights of a child, like what exactly a child want and how like Swarnath is basically going to help them. So every child has a right to live and a birth registration, right to freedom of expression, family relations and nationality, right to education and right to be treated fairly. So our goal is like every child should have these minimum things. Then I'll go one by one now about Swarnath Foundation. Swarnath being a nodal voluntary organization working for children who are in need of care and protection. Their vision, protection and promotion of rights of children. Their mission, nurturing family for every child. Their main slogan is like Har Bacche Ko Parivar. So with that aim only like Swarnath is proceeding further. Their objectives has been mentioned over here. Then going ahead, then why Swarnath Foundation needs to be there. So their main word is like orphan word needs to get omitted. So their main vision is like
why not replace like earlier, like how disabled childs were given a name Divya. So why not orphan child needs to have a name Swanath, because in their name only like Anath word is being used and it's being for served, like this needs to be replaced. So they are running behind the government for replacing this exact word. And why Swanath came into existing, like everything has been mentioned over here. Then how we work. So the Swanath's major role is to enhance the orphan world with a systematic approach, research, well-managed plans and endless efforts. Various government agencies like PwC, the government different departments, ICCS, DCCO, police and NGOs work for child care and protection. So their main vision is like every child, like when they are talking about like the foster service, how they can get connected with each other. Then foster care. Now, why foster care? What are the hurdles currently they are facing? The government policies behind it, state-wise approach. So over here, like to excel Swanath Foundation, so they have kept the option for registration. So through this registration tab, people can basically get connected with Swanath, like by mentioning their name, their email, their mobile number, their date of birth, their address, their district, the city in which they are, then their gender, whether they are married or not, their occupation can be taken ahead, and finally like how they want to get connected with Swanath, whether it's with their time with trust, energy with emotions, accurate empathy, money with morality, resources and all above. So this way like anyone can join Swanath Foundation. So in the past 2 years, like what all events has happened, so that has been showcased over here. So like first of all, like with the launch of the app Swanath Foundation, then the Child's of Rights Act, like they met like various state commission bodies, then the event in Akola, then with the chairman of NCPCR inner wheel meeting, and there were lot many events like which had happened during the past 1 year. So that like for example, like this was a meeting with the NCPCR chairman. So over there, like after that, she met Smriti Irani also, like who is the Women and Child Development Minister of India. Then the gallery. Then Shreya ma'am did said, but it is the first foster care organization of Maharashtra which worked with the Uttarakhand government and the Delhi government. so when she was meeting like Uttarakhand minister, so she is the Women and Child Development Minister, Rekha Arya. Shreya ma'am have trained more than 120 social workers in Uttarakhand. Then the videos, like how she is spreading her message. So that section has been kept under videos. So her main vision of the video has been kept over here. It's a 6-minute video, and then rest all other videos that will be coming over there. It's getting loaded. And the most important thing, like we expect from everyone to donate now. So if anyone feels like yes, it's a well-being, like to get connected with Swanath, and let's organizations like Swanath explore more in this segment. So they can basically click on over here and they can basically donate now. And finally they can contact Swanath Foundation. So with this, like I'll summarize the thing. Thank you. It's so like every event, so like for today's event, like what had happened right now. So the same thing will be updated like by end of the day. Daily. Yeah, daily. Correct. I request Honorable Chandrakant Dadapati to have a few words for Swanath Foundation. समाज में चलने वाले काफी समाजोपयोगी उपक्रम में सबसे ऊपर नंबर जिसका जाता है वो इस क्षेत्र में काम करने वालों का जाता है, जो एक यूनिक क्षेत्र है, अलग क्षेत्र है, और ठीक प्रकार से काम किया तो आने वाले सालों में अनाथालय नाम की कंसेप्ट ही नहीं बचेगी। जो बच्चे ही नहीं आएंगे, घरों में जाएंगे तो अनाथालय क्यों चलेंगे। तो ऐसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर में काम करने वाली स्वनाथ फाउंडेशन
उसको 2 साल पूरे हुए, तो उसके वर्धापन दिन के निमित्त यहाँ उपस्थित सोनाथ फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रेया भारतीय, सोनाथ फाउंडेशन जैसे काफी बेसिक कंसेप्ट को लेकर जो पूरे जीवन भर काम करते हैं प्रशांत जी हड़तालकर, जिन्होंने अभी यह वेबसाइट बनाई जिसका लॉन्चिंग अभी हुआ, और मैंने उनसे वो पूछा कि वो हर रोज इसको अपडेट करेंगे और डेढ़ पड़ी रहेंगी, तो उन्होंने कहा कि हर रोज इसको अपडेट करेंगे। जैसे हर रोज इसको अपडेट करने वाले और बनाने वाले सारिका मल्होत्रा जी, गगन मल्होत्रा जी, महिला जब काम करती है तो उसके पति ने उसको सहयोग नहीं दिया, उसके घर वालों ने सहयोग नहीं दिया, वो काम नहीं कर सकती या आनंद से काम नहीं कर सकती। तो ऐसे उनको आनंद से काम करने के लिए सपोर्ट करने वाले और इसी फील्ड में एक अलग तर्पण नाम से काम करने वाले, जिसमें 18 साल तक, शायद अभी 22 साल किया क्या कल को नहीं 18 नहीं कल 22 केवल अनुरक्षण गृह के लिए किया, सबके लिए तो 18 साल तक उस अनाथालय में रहने वाला बच्चा 18 साल उसके होने के बाद में नहीं रह सकता। बाद में उसने कहाँ जाना है, क्या करना है, इसकी कोई गवर्नमेंट की योजना नहीं। उसमें काम करने वाले तर्पण नाम से श्रेया के पति श्रीकांत भारतीय, उसके सारे फैमिली मेंबर्स या तर्पण से और सोनाथ से संबंधित सारे बंधु और बहनों, मैंने शुरू में कहा कि समाज में अलग अलग प्रकार के जो काम चलते हैं, हर काम महत्व का है। दिव्यांगों में काम कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग सीनियर सिटीजन में काम करते हैं, कुछ लोग गांवों के मजदूरों में काम करते हैं, कुछ लोग ट्राइबल बेल्ट में काम करते हैं। लेकिन सबसे महत्व का बहुत सेंसिटिव संवेदनशील विषय यदि होगा तो यह है कि जो बच्चे माता पिताजी उसको नहीं है, अलग अलग कारणों से नहीं होते, इट नॉट नेसेसरी कि उनको उस माता ने ओनरशिप न लेकर कहीं छोड़ दिया, इतना ही नहीं है। तो अभी अभी कोरोना के कारण भी कई बच्चे ऐसे हुए कि जिनके माता पिताजी नहीं है, तो उनको किसी बिल्डिंग में बड़ा करना, अनाथालय एक बिल्डिंग है, एक हाथ दूसरी वहां की वर्कर ये हो सकती है कि वो बहुत प्रेम से करती है, बाकी तो एज अ ड्यूटी करते हैं। तो उससे उनका जो भाव विश्व है वो जैसा चाहिए वैसा डेवलप नहीं होगा। ब्रिलियंसी शायद बेसिकली रहती है और अनाथालय में कुछ उसके लिए व्यवस्था भी रहती होगी, स्कूलों में जाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन एक भाव विश्व जो किसी व्यक्ति का बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। और इसलिए उस बिल्डिंगों में न रहते हुए घर में माता पिता जी, बहन भाई इस प्रेम में रहने की एक ही कल्पना, जिसको अभी कानून ने भी मान्यता दी, उस फॉस्टर केयर के कंसेप्ट को लेकर सोनाथ काम कर रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि ये पूरे भारतीय फैमिली से तो 40 साल से मैं जुड़ा, मैंने श्रेया के मायके यहाँ भी और श्रेया के ससुराल में भी 40 साल से भी ज्यादा साल से मैं जुड़ा रहा और लगातार ये देखता आया हूँ कि कोई ना कोई बेसिक प्रश्नों पर ये काम करते हैं। इस फेसबुक लाइव पर काफी लोग कनेक्ट हुए हैं, तो उसमें एक ऑप्शन है आर्थिक मदद करना, वो बहुत स्वाभाविक है, सहज है, कर सकते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम के बाद यदि किसी ने यह पूछा इनको वेबसाइट पर जाकर या फोन करके कि भाई हमको एक बच्चे को घर में लेकर आना है, तो शायद आज का कार्यक्रम यशस्वी हुआ ऐसा मैं मानेंगे। और वेबसाइट का यही काम है कि वो बड़े पैमाने पर इस जानकारी को मल्टीपल करती जाएगी, लोगों को जानकारी होगी। कई लोगों को मालूम भी नहीं है इस प्रकार से हम पेरेंटशिप ले सकते हैं, अपने यहाँ अडॉप्ट करना इतनी कंसेप्ट मालूम है। तो अडॉप्शन में कई प्रॉब्लम है, अडॉप्शन में थोड़ा मन में डर भी रहता है कि भाई इतने छोटे बच्चों को कैसे हम संभालेंगे। लेकिन इस फॉस्टर केयर में नॉट नेसेसरी वो छोटा बच्चा ही है, वो छोटा बच्चा ही हो सकता है, लेकिन बड़े बच्चों को भी हम अपने घर में लेकर जा सकते हैं। 2 बच्चे घर में, उसमें तीसरा बढ़ेगा, तो तीसरा बच्चा माता पिता जी के और घर में दादा दादी के भाई बहन इनके प्रेम के साथ जब बढ़ेगा
तो एक सेंसिटिव संवेदनशील नागरिक बनने में उसकी उपलब्धि होगी। मैं श्रेया जी को बहुत अभिनंदन करता हूँ कि 2 साल इस प्रकार के संगठन को चलाना कि जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। जानकारी वाला काम शुरू किया तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है, तो 2 साल इसको चलाया, आगे भी ये चले इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और फेसबुक लाइव पर जो लोग हैं उनको दोनों प्रकार का आह्वान करते हैं कि आप अपने घरों में या अपने दोस्तों के घरों में इसको प्रमोट करो कि कोई बच्चा अपने घर में और लाना चाहिए। और आर्थिक मदद का तो कोई विषय नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे अच्छे कामों के लिए पैसे की कोई कमी होती है। तो उस प्रकार की आवश्यकता उनकी आर्थिक भी हम सब पूरा करेंगे। फिर से एक बार इस वेबसाइट लॉन्चिंग में वेबसाइट बनाने वाले सारिका जी और गगन जी दोनों का अभिनंदन करते हैं। श्रेया जी ने 2 साल इस काम को चलाया और आगे भी ये काम चलने के लिए बड़े उत्साह से लगे, सबका अभिनंदन करके मेरा भाषण है। Thank you for the speech. With the help of Honorable Chandrakant Dada Patil, Swarnath Foundation have increased its branches in the other state of Uttarakhand, Delhi, and successfully covered it in Maharashtra. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event of all dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest who has honored this function with his inspirational thoughts. I would like to thank our founder and managing trustee of Swarnath Foundation for making this an inaugural function to happen. Our Swarnath supporters and pillars who prove if you don't have a plan for your life, somebody else does it, who have really proved themselves in their daily life routine. Our brilliant audience and Facebook viewers for making this function a grand success. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Please sanitize yourself, wear a mask, and I would request Ms. Shreya Bhartiya to end this session with Jana Gana Mana. हम सभी इकट्ठे मिलकर जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।